Hello and welcome to this special broadcast from Aligarh. Now, why Aligarh? The Prime Minister is in Aligarh to lay the foundation stone of a university in the name of this gentleman right here. His name is Raja Mahendra Pratap Singh. There will be a university right here, right behind me. The foundation stone laying ceremony is taking place. Now, interestingly, Raja Mahendra Pratap Singh, and when you are in UP, everything is about caste equations and caste politics. Raja Mahendra Pratap Singh is Jat. Now we know that in Western UP, if you want to do anything, you got to have the Jats by your side. They are 17% strong in Western UP. And the events of the past 1 year, when there was a farm law, that agitation in Western UP was largely being led by Jat farmer leaders. So could they have possibly damaged the political prospects of the BJP? And is this an effort 6 months ahead of the elections to negate that effect? To create a situation where this impression that is being created that the Jats are going to vote against the BJP really does not exist. So is this a Jat outreach by the Prime Minister? We find out. काले रंग की पहना है, इस वजह से नहीं अलाउ है कि कहीं हिला ना दो ऐसे करके। हाँ जी सर, जी सर। अब क्या करोगे? टी शर्ट उतर गई, कोई बात नहीं, हम तो उतार के रख जाएंगे यहीं। जाटों के लिए कहा जाता है कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे टिकैतों ने आंदोलन छेड़ा, किसान आंदोलन हुआ, उससे जाट वोट जो है वो बीजेपी से हट गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जाट वोट कभी बीजेपी से नहीं हटा। भारतीय जनता पार्टी ने जब जाटों का ही मामला आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, वो राष्ट्र की और सब जातियों की करती है। लेकिन जाति का आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर भी दूंगा। जब जाटों का आरक्षण हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने जाटों के लिए बीसी में आरक्षण देने का काम किया है। जब आर्मी में जो भी हैं, जो भी फोर्स है, उसमें हमारे जाट भाई लोग ही ज़्यादा रहते हैं। हमारी जाति से कृषि और देश की रक्षा करना हमारी जाति का ज़्यादातर संस्कार है। पहले आर्मियों में क्या होता था कांग्रेस सरकार में, और अब आज की आर्मी कितनी सुरक्षित और कितनी अपने आप को मजबूत समझती है। जाट कहीं वोट नहीं गया। किसान जाट अधिकतर किसान ही आर्मी में होते हैं। जो किसान सम्मान निधि दी है और जो हमें आराम से बिजली मिलती है, हमें 18-20 घंटा, खाद बीज मिलता है, गन्ने का अच्छा पेमेंट मिलता है। अच्छा, मैं अभी देख रहा था आप थोड़ी देर पहले लोगों को ये बोल रहे थे कि भाई काला कुछ अंदर लेकर के मत जाना। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है, काले कपड़े का इनकी एक व्यवस्था होती है, सरकारी व्यवस्था होती है। कोई काला कपड़ा लेकर जो ये कह रहे हैं, उनको हम एक कार्यकर्ता के नाते सबसे निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग चलें। हमें पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करना है। कितना बेच दिया इसको? पूरा भर के लाए थे, खाली हो गया। अब क्या रैली सुनोगे? बच्ची है अभी तो। अच्छा, अभी क्या है, कितने का है? 10 के 2। 10 की 2। क्या किसको कहते क्या है? क्रीम रोल। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। So at this function of laying the foundation stone in Aligarh, a very strong attempt has been made by the Prime Minister from the stage to establish Raja Mahendra Pratap Singh as a big icon. He is a big icon, but the Prime Minister says that there was a situation where over the years his contribution in the freedom struggle and his contribution for this region, for donating land for the Aligarh Muslim University, for donating land for colleges in Vrindavan, was somehow forgotten in the textbooks of history. And that is why that lost pride needs to be restored. The attempt is to tell and make people aware that Aligarh and nearby areas also, they have their own icon to celebrate and to think of. But could there be a hidden message behind this? Could there be perhaps a hidden message in which a foundation stone ceremony
has been converted into a huge rally, as you can see right behind me. A message, however, that has not been mentioned in his speech. It has not been mentioned even by the Chief Minister that Raja Mahendra Pratap Singh was a Jat. He was a tall Jat leader. While this has not been mentioned from the stage, will the messaging on the ground by the cadre of the BJP make sure that this point is buttressed, this point is taken across to the 17% Jats who are extremely important if you were to do anything electorally in Western UP, especially at a time when the Jats are leading the farmer agitation against the 3 farm laws. So that is going to be very, very significant. योगी जी की सरकार और केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेहनत कर रही है। हमें मिलकर इस क्षेत्र को और समृद्ध करना है। यहाँ के बेटा बेटियों के सामर्थ्य को और बढ़ाना है और विकास विरोधी हर ताकत से उत्तर प्रदेश को बचाना है। तब तक बचती रहे जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में मिल रहा है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज गन्ना के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने बहुत उल्लेख किया, बहुत बात की उसके बारे में। इस मामले के आप मंत्री भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या किसानों को रिझाने का भी एक प्रयास ये था? क्योंकि देखिए, जो जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय खुल रहा है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट जाट लीडर हैं। तो आपको लगता है कि वो किसान जो कि खास तौर से जाट समुदाय के जो किसान हैं, वो जो नाराज हैं, ये आज एक प्रयास था कि जाति का नाम ना लेते हुए भी उन तक ये संदेश पहुंचाना कि बीजेपी आपके साथ है? नहीं, आप अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में हमेशा किसान रहता है और किसान के हित में जो उन्होंने फैसले किए हैं वो किसान जानता है, किसान जागरूक है। और यहाँ 15 से 20 लाख लोगों की उपस्थिति इस बात की गवाह है कि किस तरह से किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है अलीगढ़, चारों तरफ मुजफ्फरनगर, मेरठ, तमाम पूरा ब्रज प्रांत। और जिस तरह किसानों ने मोदी योगी मोदी योगी मोदी मोदी जिंदाबाद के लगातार, और जब तक उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं गया तब तक 15 से 20 लाख किसानों की यहाँ मौजूदगी, लोगों की यहाँ मौजूदगी और लगातार मोदी जिंदाबाद। और ये स्पष्ट करता है कि आदरणीय मोदी जी की जो दीवानगी है वो बच्चे के मन में आदरणीय मोदी जी के प्रति दीवानगी है। पर आप ये मानते हैं कि एक तबका जरूर था जो महापंचायत के माध्यम से नाराज था सरकार के फैसलों से, कृषि कानूनों के खिलाफ? तो ये शायद उन तक पहुंचने का एक प्रयास भी हो सकता है कि वो भी सरकार की बात माने। मैं केवल ये मानता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने लगातार किसानों के हित में फैसले किए हैं, योगी जी ने किसानों के हित में फैसले किए हैं। एमएसपी को लगातार बढ़ाने का विषय हो, एमएसपी पर 1.5 गुना पर खरीद करने का विषय हो, सारे खरीद के रिकॉर्ड तोड़ देने का विषय हो, 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का विषय हो, सारे बंद कारखानों को चलाने का विषय हो, यूरिया को नीम कोटेड करने का विषय हो और डीएपी पर लगातार सब्सिडी देने का विषय हो, फीडर सेपरेशन का विषय हो, गांव के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का विषय हो और आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को केंद्र में लेकर के चलने का विषय हो। और जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी जी के कानून व्यवस्था, योगी जी के विजन की तारीफ की है। और मैं तो कह सकता हूं कि आज यदि उत्तर प्रदेश की तारीफ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो हर उत्तर प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, सबके लिए गौरव होना चाहिए। गर्व की बात है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए गए काम की सराहना कर रहे हैं। सुरेश जी, जो जाट किसान हैं, जो नाराज हैं, आप जानते हैं नाराजगी तो किसी से छुपी नहीं महापंचायत की उन्होंने, आपको लगता है आप उनको रिझा पाएंगे या उनको समझा पाएंगे कि भाई हम आपके विरोध में नहीं है? क्योंकि धरना, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ 15 से 20 लाख लोगों की उपस्थिति और किसानों का उत्साह इस बात का गवाह है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की नीतियों के साथ किसान मजबूती के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नतीजे किस तरीके से रहेंगे? आपको लगता है कि 2017 से बेहतर होगा यहाँ पर बीजेपी का रिकॉर्ड या उसमें कुछ कम हो सकता है? ये सभा पश्चिम के बीच में है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच में ही है। जहाँ तक आपने चुनावी बात कही है तो मैं कह सकता हूँ कि अभूतपूर्व परिणाम चुनाव में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, आदरणीय योगी जी ने काम किया है, बच्चा उन कामों पर मोहर लगा रहा है। रिकॉर्डिंग संभाल के रख लूं, फिर मैं सुरेश राणा जी से पूछूंगा फिर मार्च में 2022 में।
कि आपने बात सही बोली या नहीं? नहीं, आप बोलते हैं तो मैं सेव कर लेता मार्च 2022 में आप निश्चित रूप से मेरा धन्यवाद करोगे कि मैंने जो बोला था वो सही उतरा। हूं। चलिए, थैंक यू। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, ये जो फंक्शन हुआ आज यहाँ पर अलीगढ़ में, ये नया विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और एक मूल प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं वो है कि एक समुदाय विशेष है जो कि अभी किसान वर्ग नाराज दिखता है सरकार से, वो है जाट। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो जाट के वरिष्ठ आइकॉन माने जाते हैं। आपको लगता है जाटों को रिझाने का प्रयास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कास्ट की राजनीति नहीं करती। राजा महेंद्र प्रताप जाट श्रोमणी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए, और महापुरुष थे। कोई महापुरुष किसी कास्ट का नहीं होता है। महापुरुष आज तक कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ही 70 साल शासन रहा, न राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान नहीं दिया। यूनिवर्सिटी बसाई, उनकी जमीन पर यूनिवर्सिटी बसी हुई है, उन्होंने सम्मान नहीं दिया। उनके महाराजा के नाम से जो अलीगढ़ भूमि पे जन्मे, मुरसान में गांव उनका, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाना, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी जी का मैं धन्यवाद दूंगा अलीगढ़ की जनता की तरफ से कि ऐसे महापुरुष के नाम जो 1915 में अफगानिस्तान में जाकर सेना बनाई, राष्ट्रपति बने और राजदूत नियुक्त किए, ये पहले ऐसे राजा थे जाट समाज के जिन्होंने प्रदेश, केंद्र और देश में विदेश में नेतृत्व किया। अभी देखिए सतीश जी, आपके मुंह से निकला जाट समाज, तो आपको लगता है कि अभी मंच से तो मोदी और योगी जी ने जाट का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जमीन पर भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात का उल्लेख करे कि ये जाट समुदाय के? मैं बता रहा हूँ ना आपको, राजा जैसे जयपुर जाएंगे आप, ठाकुर राजा, आगे जाएंगे गुर्जर समाज का राजा, ये हमारे जाट समाज के राजा थे। तो राजा भी अलग अलग कास्ट में हुए थे ना। अगर उनकी कास्ट है तो विपक्ष चिल्ला रहा है, हम तो नहीं चिल्ला रहे, हमने तो विश्वविद्यालय खोल दिया। एक सवाल मेरा, आप मुझे बताइए, इधर तो हमने शिक्षा दे दी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के नाम से, युवा यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेगा। 500 मीटर पर डिफेंस कॉरिडोर में जो डिफेंस के लिए गोला बारूद तोहफे बनाई जाएंगी, वहां पर नौकरी दे दी हमने। पहला ऐसा देश आजाद होने के बाद पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने ऐसा काम किया कि 500 मीटर दूरी पर शिक्षा प्राप्त करेगा और 500 मीटर दूरी पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी पाएगा। लेकिन सतीश जी ये बताइए, चुनाव होने के 6 महीने पहले ये सब क्यों होगा? ये पहले भी हो सकता था। इसकी घोषणा 2019 में हुई थी, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की। हमने अब नहीं करी है घोषणा, अब ऐसा नहीं कि हमने घोषणा कर दी। और डिफेंस कॉरिडोर घोषणा 2018 में हुई थी। जब ये घोषणाएं हुई हैं तो हम घोषणा नहीं करते, हम संकल्प लेते हैं। और जिस चीज का संकल्प ले लिया हो आपने, तो उसको काम पूरा करना किसका दायित्व बनता है? जब ब्राह्मण कोई संकल्प कराता है तो इसलिए कराता है ये पूरा हो, उस कार्य को पूरा करने के लिए आए योगी मोदी। एक आखिरी सवाल मेरा, और वो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये माना जा रहा था कि अब ये जाट आंदोलन, किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा डामाडोल है हिसाब किताब बीजेपी के लिए, आपको लगता है वो स्थिति सुधरेगी या ये उस तरफ एक प्रयास है? देखिए, या तो अन्य पार्टी जाट समाज को जानती नहीं है। जाट समाज हमेशा देशभक्त रहा है। मेरे अलीगढ़ जिले के जाट समाज के बच्चे सब बॉर्डर पर आर्मी में हैं, वो जानते हैं जब देश की बात आए, प्रदेश की बात आए, विकास की बात आए, तो मेरा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के और जो देश के हित के लिए कर रहा है, मेरी भारत माँ का मस्तक ऊंचा रहे, मेरी भारत माँ मुस्कुराती रहे, उसके साथ जाट समाज होता है। किसी कास्ट के लिए जाट समाज नहीं है। बीजेपी के साथ ही रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, जो देश के लिए काम करेगा, जो प्रगति के लिए काम करेगा, जो युवाओं के लिए काम करेगा, जो किसान के उत्थान के लिए काम करेगा, जो गरीब के लिए काम करेगा, उसके लिए जाट समाज हमेशा खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। So this program in the honor of Raja Mahendra Pratap Singh is now over. Of course, the BJP will say that it has no political overtones and this has nothing to do with his caste or his surname. But you know, poll dynamics in Uttar Pradesh make it very hard for us to believe. So that's what you see behind us. The people who are gathered here are now on their way out. But the sentiment being expressed here, even by members of the Jat community, that the BJP is what they will stand with and BJP is the party that will come to power in 2022. Is that really the sentiment outside of this rally ground? I think that's very important to know, and that is why we'll go into some of those Jat dominated villages of this region to find out what they think. तो विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर जरूर आए और ऐसा माना जाता है, हालांकि इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि
एक समुदाय विशेष को शायद चुनाव में रिझाने की कोशिश, थोड़ा सा चुनाव में लाभ करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इसका जिक्र स्पीच में नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के इसका असर क्या होगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, यहां से बस कुछ ही किलोमीटर दूर ये लोहारा गांव है, जहां पर इसी समुदाय के बहुत सारे लोग यहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं या जो उनके मन में है उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपका शुभ नाम? बैठे रहिए। मेरा नाम सतपाल सिंह है। हाँ। गांव लोहारा है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल बनना है। हाँ। स्कूल बनने पे हमें बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पर रोड और विधायक और MP कोई नहीं आता जाता है, जिससे पब्लिक को बहुत परेशानी है। रोड टूटा हुआ है, ये रोड वृंदावन के लिए निकला है सीधा, इसमें कोई मरम्मत का कार्य नहीं है, आगे तक टूटा हुआ है। आपका गांव ये जाट समुदाय का ही गांव? पूरा गांव जाटों का है। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ये जो पूरा किसान आंदोलन हुआ, किसान आप देख रहे हैं कि टिकैत साहब जो हैं वो भी इसी समुदाय से हैं। इस समुदाय के बहुत सारे लोग जो हैं वो कृषि कानूनों को लेकर के नाराज हैं, अपनी गांव की समस्याओं को लेकर के नाराज हैं। आपको लगता है कि ये प्रयास जो कि एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर ये जो विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है, इससे एक प्रयास किया गया है बीजेपी द्वारा कि भाई जो जाट समुदाय है वो हमसे उतना नाराज ना रहे जितना है अभी? देखो, जाट समुदाय पहले भी नाराज नहीं था, अब भी नाराज नहीं है, लेकिन ये जो किसानों को आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे बड़ी तो समस्या रेटों की है। जो अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि उस चुनाव में आपका समुदाय भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहा है पिछले 2-3 बार से, तो आपको लगता है इस बार कुछ बदलाव आया है या कुछ फर्क आया है, या ये मुद्दे होंगे कि जो हमारा विकास नहीं हुआ उसको आप चुनाव में दिखाएंगे? नहीं, विकास से उससे कोई नहीं, जो जाएगी तो बीजेपी की लहर आएगी। हाँ। फिर भी 22 में इसी के प्रयास होंगे। हाँ। जाट इससे कोई बनेंगे। ये कॉलेज बना रहा है तो जाट पर भी बहुत असर पड़ रहा है इसका। हाँ। कि जो क्षेत्र में खुला हुआ है जो कॉलेज जो है, इससे हमारे बच्चे हैं, नौजवान है, ये आगे के लिए इनका भविष्य भी होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसका वोट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये तो चोटा है ये। पहले टिकट जो पहले बिक गया था वो दिल्ली में जाके क्या मिला उसको किसानों को? खैर में हमारे किसान कितने मरे थे, क्या मिला था उसको? महेंद्र सिंह टिकैत थे जो राकेश टिकैत के जो पिताजी हैं, वो दाम लेके संसद में वो भी बिक गए थे। पीछे जो ठप्प हो गया था ये। यही पूछना चाहता हूँ मैं कि ये जो प्रयास किया है सरकार ने, इससे क्या वोटिंग पर फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? आपके असली मुद्दे क्या हैं? नहीं, किसान पे तो नहीं पड़ना चाहिए इससे। किसान तो सुखी है ही नहीं इस सरकार में। हाँ। किसान के लिए खाने के लिए नाज नहीं रहेगा तो बच्चों को पढ़ाने क्या है? अभी जो कॉलेज खड़ा है, यूनिवर्सिटी खोल रही है ये, तकरीबन 10 साल में चालू होगी, और किसान की इसी तरह हालत रही तो किसान 10 साल में कितना नीचे जाएगा, इसका अनुमान लगाना ही बहुत बड़ी बात है। तो इससे किसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबके विचार और सबका मन अलग अलग होता है। हाँ। कि कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है। हाँ। वही ये है, MP का और MLA का चुनाव होगा, उसी हिसाब से वोट बटेंगे। हाँ। इसमें हाँ। भाई जो लोग हैं जाट समुदाय, मतलब ये समझ लेना कि एक समुदाय है तो वो एक समुदाय एक पार्टी के पास ही जाएगा, ऐसा ठीक नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, एक पार्टी के पास कुछ नहीं जाएगा। कुछ लोग उसके पास जाएंगे, कुछ उसके साथ जाएंगे, कुछ अलग अलग जाएंगे। विकास के आधार पर वोट करेंगे फिर। जाट चाहे कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाए, हमें जातिवाद के आधार पर वोट नहीं करना है। बस तो आप ये मानते हैं कि जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उसका किसान आंदोलन का अलग प्रभाव पड़ेगा। वो अपनी जगह अलग स्टैंड कर रहे हैं। कैसा प्रभाव आपको क्या लगता है? रेट नहीं मिल पा रहा है किसी उसका। आज उसी विषय पे फिर भी चर्चा हुई है, और 5-6 बार सरकार ने भी संशोधन करने की कोशिश करी है, लेकिन हो नहीं पाया है। किसान भी समझेंगे और सरकार भी हमारी परेशानी समझेगी, तो इसी आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा विकास को वोट करेंगे। मतलब आप उम्मीद अभी भी इसी सरकार से लगाए हुए हैं? उम्मीद है अभी भी इस सरकार से कि हमारी सुनवाई होगी। बीजेपी ने विकास तो किया, लेकिन किसान के लिए क्या किया? हाँ। हम तो किसान है तो किसान की सोचेंगे पहले, या फिर पूंजीपतियों लोगों की सोचेंगे? एक भी किसान के लिए कुछ भी अच्छा किया हो तो एक भी काम हमें गिना दें कि मोदी जी ने किसान के लिए ये किया, इस बेस पे किसान मोदी जी को वोट दे दे। उम्मीद है, 2 बार किसान ने वोट दिया उन्हें, और उन्होंने उम्मीद भी की, उम्मीद पर नहीं खरे उतरे। अब भी किसान सोच रहे हैं कि अगली बार देखते हैं कुछ और अच्छा करें। तो इसलिए काम गिनवाएंगे। पिछली बार किसान के आलू 2000 और 2200 रुपए बिके थे, ये मोदी जी की वजह से ही होंगे। जब घाटा उनकी वजह से हो रहा है तो आलू भी 2000 उन्हीं की वजह से बिके। बताइए,
नहीं तो 2 मत यही हो गए। नहीं बात ठीक है, आलू पिछली साल 2000 बिका था, उतनी महंगाई हो गई। लेकिन हम जो खादा कट्टा पहले भी जिस रेट में ला रहे थे आज भी ला रहे हैं। तो आलू तो एक ही साल तो 2000 का बिका, उसके बाद तो 300 का बिक रहा है। इस 2000 से पहले भी 300 का और 150 का बिका। तो महंगाई तो हर साल खरीद रहे हैं, महंगा खाद्य पदार्थ तो हम हर साल खरीद रहे हैं, लेकिन फसल अपनी 5 साल में एक बार महंगी बेच रहे हैं। उसका क्या लाभ है फिर? सुना आपने? फसल कम करेंगे तो रेट ज्यादा मिलेगा। ये भी किसान पर डिपेंड करता है। फसल अगर किसी की पैदावार ज्यादा होगी तो रेट कम मिलेगा उसका। ये भी किसान पे डिपेंड करता है। कम मिलेगा यार, तुम कहाँ से बोलते हो? कम कैसे मिलेगा? रेट मिलेगा कैसे? वो कर दो है, खुले रेट कर दो। तो क्या 2200 रुपया को बाजरा को रेट कर दिया। अब बाजरा तो कहते हैं आप ज्यादा कर लो या कम कर लो, रेट तो कोई रहेगा। रेट तो कोई रहेगा नहीं है भाई, रेट को रहेगा ना रहेगा। अब कम कैसे कर लेगी गवर्नमेंट, बताओ तो। क्या है, मैं मानूं कि आपकी बात से कि ये जो बात हो रही थी कि किसान आंदोलन के चलते पूरा जाट समुदाय किसी एक पार्टी विशेष के खिलाफ हो गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। प्रशासन स्तर पर सरकार को फेल कर रही है। वैसे मुख्यमंत्री की सोच है, समझ है, विचारधारा वो सही है, और ऊपर से वो सेंटर सरकार थोड़ी दिक्कत कर रही है। 900 रुपया मिल रही है, जब तक कह रहे फ्री मिल रही है। अब 900 रुपया मिल रही है, तेल 90 रुपया लीटर हो और पेट्रोल 100 रुपया लीटर। किसान ही तो ऐसा ही सारी गोशी है गई जी। तो काउ सरकार ने ना करे होता ना तो जा GST में चुना ला मत। अरे क्या GST में लाओ तो सही भाव मिले और वो होए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।